Good morning students. Today we'll start our new chapter, that is 3 questions. Okay, now come to the reading part. It once occurred to a certain king that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. So, undertake means to accept that you are responsible for a piece of work and start to do it, है ना. मीन्स कोई सा भी काम है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल है और आपको करना है. तो बस जो किंग था वो चाहता था कि उसको हर चीज पता हो. ओके, and this thought having occurred to him, he had it proclaimed. Now what is the meaning of proclaimed? Said it publicly or officially that something important was true or existed. Okay, मतलब proclaim means क्या हुआ कि publicly या officially है ना, आपने है ना इसको announce किया है कि कुछ चीज़ें जो कि सही और exist करती है. Throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who would teach him what is the right time for every action. क्या टीच करना है कि क्या सही समय है कोई भी काम शुरू करने का. Was and who were the most necessary people, और कौन सबसे ज़्यादा ज़रूरी लोग हैं. And how he might know what was the most important thing to do, और कैसे पता चलेगा कि सबसे important काम कौन सा है. So these are the 3 questions that king want to know, and he rewarded for this some amount that the person who teach them, the king will give the reward to those person. He learned men came to the king, and learned men came to the king. जो पढ़े लिखे लोग थे वो king के वहाँ गए, but they all answered his questions differently. और सबके ही जो आंसर थे वो different थे, अलग अलग थे. In reply to the first question, some said that to know the right time for every action, one must draw up in advance a table of days, month and year and must live strictly according to it. मतलब कि किसी ने क्या कहा कि एडवांस में आपको दिन महीने साल का मतलब ध्यान रखना होगा और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना होगा. Only thus said could everything be done at its proper time. Others declared that it was impossible to decide beforehand the right time for every action. So what is the meaning of beforehand? So the meaning of beforehand is before something else happen or is done specially so that you are ready for it. Okay, मतलब कोई भी काम आप पहले से करके रखे, तैयार रखे, तो ये काम जो है वो बहुत इम्पॉसिबल है. तो कुछ लोगों ने क्या कहा, इट्स वेरी इम्पॉसिबल कि हम पहले से ही सही समय पे एक्शन ले पाए. बट दैट नॉट लेटिंग वन सेल्फ इज ऑब्जर्व इन आइडल पास टाइम. वन शुड ऑलवेज अटेंड टू ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन एंड देन डू वॉट वॉज मोस्ट नीडफुल. ओके, सो इक्वली डिफरेंट were the answers to the second question. Some said the people the king most needed were his counselors, others the priest, others the doctor. मतलब सबने अलग अलग कहा कि किंग को या तो काउंसलर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी ने कहा प्रीस्ट इम्पोर्टेंट है, किसी ने कहा डॉक्टर इम्पोर्टेंट है, while some said the warrior were the most necessary. To the third question, as to what was the most important occupation, some replied that the most important thing in the world was science. क्या कहा लोगों ने, सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, साइंस के बारे में जानना. Others said it was a skill in warfare and others again that it was religious worship. तो यहाँ पे भी थर्ड क्वेश्चन का जवाब सबने डिफरेंट दिया. All the answer begin different. The king agreed with none of them and gave the reward to none. किंग ने जब देखा कि तीनों सवालों के जवाब सबने अलग अलग दिए, किसी का भी जवाब मैच नहीं हुआ, तो वो किसी के भी जवाब से सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया.
but still wishing to find the right answer to his question, he decided to consult a hermit widely renowned for his wisdom. So क्या किया किंग ने? फाइनली किंग ने डिसाइड किया कि जो भी अपने ज्ञान के लिए व्यापक रूप से प्रसिद्ध उपदेशक है, उससे वो ये जानकारी या परामर्श लेगा इस बारे में. ओके. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर क्विटेड एंड ही रिसीव नन बट कॉमन फॉक. है ना. तो वो एक साधु के पास गया और वो एक लकड़ी की झोपड़ी में रहता था जिसको उसने कभी नहीं छोड़ा था, और वो कॉमन लोगों की तरह वहां पे सरवाइव करता था. फॉक मीन्स कॉमन पीपल. है ना. सो द किंग पुट ऑन सिंपल क्लोथ्स एंड बिफोर रीचिंग हर हर्मिट सेल्स डिमाउंटेड फ्रॉम हिज हॉर्स, लीविंग हिज बॉडीगार्ड बिहाइंड, ही वेंट ऑन अलोन. तो किंग जब हर्मिट के पास जा रहा था तो उसने क्या किया, अपने साधारण वस्त्र वगैरह पहन लिए, हॉर्स को भी छोड़ दिया दूरी, और अपने जो बॉडीगार्ड थे उनको भी पीछे छोड़ दिया. वो पूरी तरीके से अकेला उस साधु के पास गया. When the king approached, the hermit was digging the ground in front of his hut. Seeing the king, he greeted him and went on digging. The hermit was frail and weak, and each time he stuck his spade into the ground and turned a little earth, he breathed heavily. अब क्या हुआ, जब किंग उसके पास गया तो उसने क्या देखा, जो साधु था, जो हर्मिट था, वो है ना अपनी हट के सामने गड्ढा खोद रहा था. और ये उसने जब किंग को देखा तो उसने उससे ग्रीट किया, है ना, और वापस से अपने काम में लग गया, मतलब गड्ढा खोदने लगा. तो और फिर हर्मिट जो था वो कैसा था, राजा ने क्या देखा कि जो हर्मिट था वो बहुत ही वीक था और बहुत ही पतला था. है ना. फ्रेल मीन्स वीक एंड थिन. है ना. फ्रेल मीन्स वीक एंड थिन. तो बहुत ही पतला और दुबला सा और बहुत ही कमजोर था. है ना. वो हर बार अपने स्पेड से ग्राउंड में है ना खोदता और थोड़ी सी मिट्टी बाहर निकलता और फिर एक लंबी सांस लेता, क्योंकि वो बहुत कमजोर था तो वो बहुत जल्दी हाफ जा रहा था. है ना. मतलब उसकी सांस फूलने लगती थी. द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, आई हैव कम टू यू, वाइस हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस. क्या कहा उसने, मैं यहाँ आपके पास आया हूं क्योंकि मैं अपने 3 सवालों का जवाब आपसे चाहता हूं. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम. मैं कैसे ये सीख सकता हूं कि मुझे कोई भी सही काम सही समय पे करना है. हु आर द पीपल आई मोस्ट नीड. कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है. एंड टू होम शुड आई देयरफॉर पे फॉर मोर अटेंशन देन टू रेस्ट. और कौन ऐसे हैं जो मेरे लिए बहुत ज्यादा, जिन पे मुझे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए. एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नीड माई फर्स्ट अटेंशन. और ऐसे कौन से काम है जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और फर्स्ट प्रायोरिटी पे होना चाहिए, मतलब सबसे पहले मैं उन्हें कंप्लीट करूं. द हर्मिट लिसन टू द किंग बट आंसर्ड नथिंग. ही जस्ट पैट ऑन हिज हैंड एंड रिकमेंडेंस डिगिंग. हर्मिट ने क्या किया, उसने किंग की सारी बात सुनी पर कोई रिप्लाई नहीं किया. उसने वापस से अपने स्पैड से गड्ढा खोदना शुरू कर दिया. You are tired, said the king. Let me take this spade and work a while for you. Thanks, said the hermit. And giving the spade to the king, he sat on the ground. क्या किया, किंग ने कहा कि तुम बहुत थक गए हो तो मैं तुम्हारा ये काम कर देता हूँ. हर्मिट ने उसका धन्यवाद किया और अपना स्पेड जो था वो किंग को दे दिया. When he had dug 2 beds, the king stopped and repeated his question. किंग ने 2 बेड डग किए और उसके बाद वापस से अपने क्वेश्चन को उसने रिपीट किया. हर्मिट अगेन गेव नो आंसर. हर्मिट ने फिर भी कोई आंसर नहीं दिया. बट सेड, हियर कम्स समवन रनिंग, लेट अस सी हु इट इज. पर हर्मिट ने क्या कहा, देखो इधर कोई भागता हुआ आ रहा है, देखते हैं कौन है वो. द किंग टर्न्ड अराउंड एंड सॉ अ बियर्ड मैन कम रनिंग आउट ऑफ द वुड. द मैन हेल्ड हिज हैंड raised against his stomach and blood was flowing from under them. When he reached the king, he fell fainting on the ground
mourning feebly. The king and the hermit unfastened the man's clothing. There was a large wound in his stomach. The king washed it as best as he could and bandaged it with his handkerchief and with the towel the hermit had. But the blood wound not stopped flowing. And the king again and again removed the bandage soaked with warm blood and washed and rebandaged the wound. When at last the blood ceased flowing, the man revived and asked for something to drink. The king bought fresh water and gave it to him. तो क्या हुआ? अब जब जैसे उस हरबिंद ने कहा देखो इस तरफ कोई दौड़ के आ रहा है, देखते हैं कि वो कौन है, तो किंग ने क्या देखा? उसने देखा कि एक आदमी है जो जिसकी दाढ़ी वगैरह है, वो भागता हुआ आ रहा है और उसने अपने स्टमक को दबा रखा है क्योंकि और वहां से जो है ब्लड निकल रहा है। तो वो वहां आते ही और किंग के सामने गिर गया और बहुत ही कराती हुई दर्दनाक आवाज में वो बोल रहा था, मतलब था, है ना। मॉर्निंग मीन्स लो साउंड एक्सप्रेसिंग पेन, है ना। फीबली मीन्स वीक, मतलब बहुत ही वीक था और है ना अपनी दर्द भरी आवाज उसकी बहुत दर्द से कररा रहा था। फिर क्या किया? किंग ने उसे देखा और उसने उसके वुंड को सही करने का कोशिश किया। उसने क्या किया? सबसे पहले उसे वॉश किया, फिर वहां बैंडेड लगाया और फिर अपने हैंडकरचीफ और जो हरमित के पास टॉवल था उससे उसने उसे पूरा उसके जो घाव था उसको मतलब पट्टी की और उसने उसको ही सही किया। फिर जब वो उसने कुछ पीने के लिए मांगा तो किंग उसके लिए फ्रेश वाटर लाया और उसने उसको वो दिया। मीनवाइल द सन हैड सेट, it had become cool, so the king with the hermit help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. Laying on the bed, the man closed his eyes and was quiet. But the king was so tired from his walk and from the work he had done that he crouched down on the threshold and also fell asleep so soundly that he slept all through the short summer night. Okay, so थ्रेशोल्ड में मतलब क्या होता है? द एंट्रेंस टू अ रूम और बिल्डिंग, है ना। थ्रेशोल्ड में तो वो वहीं सो गया, जो उस हट की जो एंट्रेंस थी वो वहीं सो गया। तो क्या हुआ? सूरज ढल चुका था, इस वजह से उन्होंने किंग और हरमित ने जो बीमार जो घाव से जिसके घाव हो रखा था उस इंसान को, जो बियर्ड मैन था जिसको चोट लगी हुई थी, उसको अंदर हट के अंदर उसे सुला दिया। और किंग बहुत थक चुका था क्योंकि वो इतना लंबा सफर करके आया था, फिर उसने जो पूरे दिन गड्ढा खोदने का काम किया था, तो इस वजह से वो इतना थक चुका था कि वो झोपड़ी के एंट्रेंस पे ही सो गया। ठीक है। When he awoke in the morning, it was long before he could remember where he was or who was the strange bearded man lying on the bed and gazing intently at him with shining eyes. Forgive me, said the bearded man in a weak voice. क्या हुआ? जैसे ही जब किंग उठा तो बियर्ड मैन ने उसे कहा कि मुझे माफ कर दो। When he saw that king was awake and was looking at him. Okay, I do not know you and have nothing to forgive you, said the king. किंग ने क्या कहा? मैं ना आपको जानता हूँ और ना ही मेरे पास कोई ऐसा रीजन है जिसकी वजह से मैं तुम्हें मतलब फॉरगिव करूं। You do not know me, but I know you. I am that enemy of yours who sought the revenge himself on you because you executed his brother and seized his property. उसने क्या कहा कि तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ और मैं तुमसे रिवेंज लेने आया था क्योंकि तुमने मतलब है ना मेरे ब्रदर को पनिश किया था, उसे मार दिया और तुमने क्या किया? हमारी जो प्रॉपर्टी थी उस पे भी अपना कब्जा कर लिया था। I knew you had gone alone to see the hermit and I resolved to kill you on your way back. मैं जानता था कि तुम अकेले हरमित के पास गए हो, इसलिए मैंने डिसाइड किया था कि जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा।
बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न, पर कुछ दिन भी थे पर तुम नहीं आए. सो आई केम आउट फ्रॉम माई एम्बश टू फाइंड यू and came upon your bodyguard, and they recognized me and wounded me. I escaped from them, but should have bled to death had you not dressed my wound. I wish to kill you, and you have saved my life. Now if I live, and if you wish it, I will serve you as your most faithful slave, and will bid my son to the same. Forgive me. तो उसने क्या कहा कि मैं तुम्हें मारना चाहता था, है ना, इसलिए मैं आया था, और फिर तुम नहीं, जब दिन बीत गया और तुम वापस नहीं आए, तो मैं तुम पे अटैक करने के लिए आ रहा था. इतने में तुम्हारे जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझे घायल कर दिया. उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की जिसमें मैं घायल हो गया. और अगर तुम मुझे नहीं बचाते या मेरी वुंड को नहीं रोकते तो मैं मर जाता. नाउ इट्स अप टू यू कि तुम मुझे मारते या बचाते, बट तुमने मुझे बचाया. सो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने तुम्हारे साथ एक दास की तरह, फेथफुल दास, सच्चे दास की तरह रहूंगा और अपने सन को भी वही करने को कहूंगा. प्लीज मुझे माफ कर दो. द किंग वॉज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजीली. किंग बहुत खुश हुआ कि बहुत आसानी से उसके दुश्मन से उसकी शांतिपूर्वक दोस्ती हो गई. एंड टू हैव गेन्ड हिम फॉर अ फ्रेंड, एंड he not only forgave him but said he would send his servant and his own physician to attend him and promised to restore his property. किंग ने फिर अपने सर्वेंट और फिजिशियंस को भी भेजा ताकि वो बियर्डमैन जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और उसकी प्रॉपर्टी को वापस उसको कर देगा. Having taken leave of the wounded man, the king went out into the porch and looked around for the hermit. Before going away, he wished once more to beg an answer to the question he had put. The hermit was outside on his knee, sowing seed in the bed that had been dug the day before. फिर क्या हुआ? राजा जो था वो जाने से पहले हरमित से जवाब चाहता था उन 3 सवालों का. इसीलिए वो वापस से बाहर गया और उसने देखा कि हरमित जो है वो जो भी गड्ढा खुदा था वहां पे वो, है ना, कुछ बीज बो रहा है, अपने नीज पे बैठ के बीज को बो रहा है. The king approached him and said, "For the last time I pray you to answer my question, wise man." फिर किंग उसके पास गया और उसने क्या कहा? मैं लास्ट टाइम आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे क्वेश्चंस का जवाब दे दीजिए. यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हरमित. हरमित ने क्या कहा? तुमने ऑलरेडी उन 3 सवालों के जवाब दे दिए. Still crouching on his thin leg and looking up at the king who stood before him. "How answered? What do you mean?" asked the king. "Do you not see?" replied the hermit. hermit ने कहा कि क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? "If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug this bed for me, but had gone your way, that man would have attacked you and you would have repented of not having stayed with me." So the most important time was when you were digging the bed, and I was the most important man, and to do me good was your most important business. So उसने क्या बताया कि तुम्हें नहीं पता चला? अगर तुम मेरी कमजोरी नहीं देखते और ये गड्ढा नहीं खोदते तो तुम वापस जा चुके होते और वो इंसान तुम पे अटैक कर चुका होता. तब तुम्हें रिग्रेट होता कि तुम मेरे पास आए ही क्यों. रिपेंडेंट मीन्स रिग्रेट होना, मतलब अगर तुम मेरे पास से जाते और, है ना, ये गड्ढा नहीं खोदते तो वो आदमी तुम पे अटैक करता तो तुम्हें पछतावा होता कि तुम मेरे पास आए क्यों, है ना. इसी वजह से जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था वो टाइम था जब तुम बेड खोद रहे थे, मतलब गड्ढा खोद रहे थे. और मोस्ट इम्पोर्टेंट आदमी मैं हूं जिसके लिए तुमने वो काम किया. और सबसे अच्छा जो तुम्हारा मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस था वो ये था कि तुमने उसे
बचाया, है ना। तुमने उस इंसान के लिए कुछ अच्छा किया, ये तुम्हारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस था। आफ्टरवर्ड when that man ran to us, the most important time was when we were attending to him. For if you had not bound up his wound, he would have died without having made peace with you. अगर तुम उसके घाव को नहीं मतलब ठीक करते या उसकी पट्टी करते तो वो मर जाता और वो तुम शांति से नहीं जाता, उसके मन में एक रिग्रेट, उसके मन में एक रिवेंज तुम्हारे लिए साथ जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, है ना। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। तो तुम्हारे लिए वो इंसान बहुत इम्पोर्टेंट था और उसके लिए जो तुमने किया वो तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस था। रिमेंबर देन देर इज द ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट। फिर हर्मिट ने क्या बताया, सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या है, नाउ। जो वर्तमान है वही सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, न पास्ट न फ्यूचर। वर्तमान जो है, जो अभी है, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। इट इज द इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर। क्या कहा हरमित ने कि नाउ एक ऐसा समय है, यही सबसे इम्पोर्टेंट समय है क्योंकि इस समय हमारे पास सारी पावर होती है अपने अपने जो भी कार्य है वो करने के लिए। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द वन विद हुम यू आर। और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है, जिसके साथ तुम उस समय में हो, मतलब अभी जिसके साथ तुम हो वही तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है। फॉर नो मैन नोज वेदर ही विल एवर हैव डीलिंग विद एनीवन एल्स। और इससे का कोई फर्क नहीं पड़ता या कोई नहीं जानता कि वो किसी और के साथ भी डील करेगा या नहीं करेगा, है ना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अफेयर इज टू डू दैट पर्सन गुड। और सबसे जरूरी है कि आप किसी भी इंसान के साथ अच्छा करें, बिकॉज फॉर दैट पर्पज अलोन वॉज द मैन सेंट इन टू दिस लाइफ। इसी वजह से जो भी इंसान इस धरती पे आया है उसे किसी ना किसी महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए भेजा गया है कि वो किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करे, है ना। सो ऑलवेज रिमेम्बर कि जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है वो अभी है और जो आपके साथ है वो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है और आप उसके लिए क्या अच्छा कर सकते हैं वही आपके लिए सबसे अच्छा और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका बिजनेस है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you and have a good day.